Good morning, students. So, today we start the next concept of our chapter Money and Credit. And the concept is that the two sources of credit. So, we can classify the sources of credit into two parts. First, formal sources, and second, informal sources. The source of formal sources are banks and cooperatives, and informal are money lenders, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एट्सेट्रा। जो भी हम ऋण लेते हैं उसके दो स्रोत हैं, एक औपचारिक स्रोत होता है, एक अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोतों के अंदर बैंक और सहकारी समितियां आती हैं और अनौपचारिक स्रोतों के अंदर हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, सगे संबंधी, बड़े जमींदार, पूंजीपति लोग आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। First, we start about the formal sector in India. When the credit or the loan is taken from banks or cooperatives, it is called formal sector loan. जब हम ऋण कहाँ से लें? जब हम ऋण बैंक से लें या कोऑपरेटिव से लें तो हम इसको कौन सा लोन कहेंगे? फॉर्मल सेक्टर लोन, औपचारिक ऋण का स्रोत कहते हैं। Important points related to formal sector of credit in India are as follows. First, the Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. It means that the formal sector is working under the supervision of Reserve Bank of India. They charge a low rate of interest. The loan which they give, they put a low interest rate on that loan. It means कि औपचारिक जो ऋण के स्रोत हैं उसमें ऋण के ऊपर जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है। They follow rules and regulations formed by the government. ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। Besides bank, the other major source of cheap credit in the rural areas are cooperative societies. अगर बैंक के अलावा कोई cheap sources of credit है तो रूरल एरिया के अंदर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सहकारी समितियाँ हैं। Cheap and affordable credit provided by banks and cooperatives help in the country's development by fulfilling the credit needs of farmers, businessmen, small-scale industries, etc. If the government is providing loan at cheap interest rates, so it is essential for the development of a nation. If the farmers, businessmen and small-scale industries owner, they are able to get cheap loan from the bank and cooperative societies or by the government, so it reduce the cost of production. So it if there is a control over the production, it means that inflation does not go high. अगर उत्पादन के ऊपर, अगर लागत के ऊपर हम नियंत्रण रख लेते हैं तो उसका सीधा सा प्रभाव एक होता है कि उसमें महंगाई को रोका जा सकता है। So this is about the formal sector credit in India. Now we start here that informal sector credit in India. It includes money lenders, traders, relatives, friends, etc. The following points are to be kept in the mind regarding the sector. Informal sector credit activities are not supervised and controlled by RBI. अनौपचारिक ऋण के स्रोत किसी भी नियंत्रण में नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं करता है। दे चार्ज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने ऋण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज राशि वसूलते हैं। दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और रेगुलेशन, ना ही वो किसी नियम और विनियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देर इज़ नो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी फॉर मॉनिटरिंग द क्रेडिट एक्टिविटीज़ इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट फैसिलिटीज़ को सुपरविजन कर सके। दे कैन यूज़ अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। वो अनैतिक माध्यमों का सहारा लेते हैं जब वो बोरोवर से क्या लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर. The formal sectors are controlled by the Reserve Bank of India and following the rules and regulations of the government. On the contrary, the informal sector does not follow any rules and regulation and are not controlled by the Reserve Bank of India. So next we start that formal and informal credit. Who gets what? किसे कहाँ से ऋण मिलता है? As we discussed earlier about collateral. As you know that poor persons, poor farmers, they do not have any collateral. That means that they are not able to get loans from the cooperative societies and banks. It is the major drawbacks in our credit system in India.
गरीब किसानों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है. दैट्स द रीजन दैट दे आर नॉट एबल टू गेट चीप लोन from where? From the banks and cooperatives. So in this topic we discuss here that who gets what, किसे कितना मिलता है, कौन से सेक्टर से लोन ज़्यादा कौन लोग ले रहे हैं. Credit availed from formal and informal sources by different sections of society in rural and urban areas differ substantially. In the urban areas the following trend is observed. So there are some data that of all loans taken by the urban households, what percentage formal and what percentage was informal. Blue, percent of loans from the informal sector. Purple, percent of loans from the formal sector. 85% the poor households, they are getting loans from which sector? From informal sector, and only 15% are able to get loans from the formal sector. Household with few assets, ऐसे घर जिनकी कुछ पूंजी होती है, they are getting 53% loans from which sector? From informal, and 47% from formal. Well-off households 72% and 28%. This is the disparity, that those people, those who are rich, those who have money, they are able to get easy to get loan from which sector? From the formal sector. And rich household, that 90% of the loans are taken by the rich people from which sector? From the formal sector. So this is the disparity, that poor people are not able to get loan from the formal sector, and the rich people and the well-off households, they are easy to get लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स. ये भारत देश की सबसे बड़ी एक समस्या है कि धनी लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं और गरीब लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ कोलेटरल की वजह से क्या नहीं मिल पाता है? लोन नहीं मिल पाता है. 85% of loans are taken by the poor households in the urban areas are from informal sources. The rich households are availing cheap credit from the formal lender, whereas the poor households have to pay large amount for borrowing. Why they pay large amount of borrowing? Because they are getting loan from the informal sector. जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़्यादा ऊंची दर पर क्या लेना पड़ता है? ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें चुकाना भी ज़्यादा ही पड़ता है. In the rural areas, on an average, 50% needs are fulfilled from the informal sector. In rural areas, अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो 50% से जो ज़्यादा का जो लोन है वो अनौपचारिक क्षेत्र से लिया जाता है. इट मीन्स आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है. Disturbing facts related to the distribution of credit. In India, what are the disturbing facts that which make pain in our mind and heart? जिससे हमारे दिल और दिमाग में पेन होता है कि जिनको चाहिए लोन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और जो पहले से, जैसे कि आपको पता है विजय माल्या लोन लेके कहाँ हैं, मेहुल चौकसी, बहुत से ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो रिच पीपल थे पहले ही, और हज़ारों करोड़ों रुपए लेकर हिंदुस्तान से वो कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई किसी देश में बैठा हुआ है. The rich households avail cheap credit from the formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. It is the disturbing fact in our country India that the rich people, they are easy to get loan from the cooperative and banks at very cheap interest rate, and on the contrary our poor farmers, they are not able to get loan from the banks and cooperatives. Banks and cooperatives have not increased their lending in the rural areas. बैंक और सहकारी समितियाँ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, लोन एक्टिविटीज़ हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हैं. देयर इज़ अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल क्रेडिट. और भारत देश के अंदर जो औपचारिक ऋण का स्रोत है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. सो दीज आर द डिस्टर्बिंग फैक्ट्स related to money, related to loan system in our country India. Next we discuss here that what are the functions of the Reserve Bank of India. As we discussed that Reserve Bank of India has the authority to print our paper currency on the behalf of the Indian government, and it is the mother and father of all the banks. Okay, the formal sources
वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी औपचारिक ऋण के स्रोत हैं वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं। ऑल द कमर्शियल बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। द आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस। हर बैंक को अपना एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना पड़ता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये निगरानी रखता है कि कोई बैंक ये काम कर रहा है, यानी कि वो मिनिमम बैलेंस को अपने पास रख रहा है या नहीं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइमली ये भी देखता है कि केवल और केवल धनी लोगों को, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लोगों को ही लोन ना दिया जाए, बल्कि उन गरीब लोगों को, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाने वाले को भी क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending and to whom and at what interest rates etc. समय समय पर हर बैंक को अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उन्होंने कितना लोन किसे दिया है और किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया है, ये सभी जानकारी उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल लैंडर्स इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। औपचारिक ऋण के स्रोतों में जो ब्याज की दर होती है वो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। सो नॉर्मली द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो। यही कारण है कि जो ब्याज की दर होती है वो काफ़ी कम होती है। सो ऑल दीज आर द मेजर वर्क्स एंड द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next topic is that we are discussing here some important banking terms like repo rate. What is repo rate? When Reserve Bank of India provides a loan to the bank for a short term between 1 to 90 days, RBI takes some interest from the bank which is termed as repo rate. अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को 1 से और 90 दिन के बीच के लिए लोन देता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसको रेपो रेट कहा जाता है। Reverse repo rate, when bank deposit its excess money in RBI, then RBI provides some interest to the banks. This interest is known as reverse repo rate. कई बार एक्सेस मनी बैंक के द्वारा RBI में जमा कर दिया जाता है, तब RBI उस जमा बैंक में पैसे पर जो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है उस पर कुछ ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। कैश reserve ratio, every bank maintain certain % of their total deposit with RBI in the form of cash and net demand and time liabilities. Current CRR is 4%. हर बैंक को अपना कुछ परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। एट प्रेजेंट द कैश रिजर्व रेशियो इज ओनली 4%. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक. देर आर 2 or 3 questions that what are the working style of self-help groups. It is very important for poor people, especially for women, how it is very helpful for women. So all these are about the self-help groups. So we are starting here about self-help groups. Banks are not present everywhere. भारत देश में हर जगह बैंक नहीं है. ऑल्सो बैंक्स लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल. और बैंकों से ऋण देने के लिए बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होता है और कोलेट्रल की भी ज़रूरत होती है. सो गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स इज़ डिफ़िकल्ट. इसलिए बैंकों से ऋण लेना काफ़ी कठिन होता है. गेटिंग लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इज ईजी बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई. आप अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर ब्याज की दर काफ़ी ज़्यादा होती है. सो एन अल्टरनेट source of credit is needed. This is fulfilled by the self-help group. Following points are important related to SHGS, self-help groups. Self-help consists of certain members who pool their savings and constitute a fund which is further used for loans and advance. In the self-help group, some people they come together and pool their saving and they use that money for loan activities in future. कुछ लोग आपस में मिलकर पैसा जमा करते हैं और बाद में उस पैसे को लोन देने के लिए आपस में उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ए टाइपिकल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स. एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं. यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, जो प्राय एक ही गांव से संबंधित होते हैं. दे मीट रेगुलरली एंड पूल दियर सेविंग्स. सेविंग्स पर मेंबर कैन वेरी फ्रॉम 25 रुपीज़ to 100 रुपीज़ और मोर. वो प्राय आपस में मिलते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं और
अपनी सेविंग्स करते हैं। ये सेविंग 25 रुपये से 100 रुपये तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है कि वो कितना पैसा जमा करके और SHGS में जमा कर रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज दे हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। सो दे आर बिकमिंग पॉपुलर, ये काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने लैक ऑफ कोलेट्रल, जो कोलेट्रल की जो मांग है उसको ख़त्म कर दिया है। दे कैन गेट टाइम लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट ए रिजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो बिना कोलेट्रल के आसानी से कम ब्याज की दर के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने पर्पजेज को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं। आफ्टर ए ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, 1 और 2 सालों तक अगर लगातार एक ग्रुप लगातार सेविंग करता है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो यह बिना किसी कोलेट्रल के क्या कर सकता है, बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। द ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड नॉन रिपेमेंट आर फॉलोड अप सीरियसली। जो लोन का रिपेमेंट होता है, देयर इज नो इंडिविजुअल हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेमेंट द लोन। कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति नहीं होता है कि भाई अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो वो उसका हेडेक होगा, नहीं। इट इज़ टेकन बाय द होल ग्रुप मेंबर्स, जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं उन सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड दे आर टेकिंग द केसेस ऑफ रिपेमेंट सीरियसली। The rural poor people, particularly women, are organized into small self-help group. ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो विशेषतः महिलाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। The SHGS, what are the advantages? The self-help groups help borrower to overcome the problem of lack of collateral. जो समर्थक ऋणाधार, जो बैंकों से लोन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, गिरवी रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अब उस समस्या का समाधान स्वयं सहायता समूह ने कर दिया। एंड नाउ द पुअर पीपल दे आर गेट लोन्स विदाउट एनी कोलेट्रल। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज। अब वो क्या कर सकते हैं कि आसानी से उन्हें बिना कोलेट्रल के लोन मिल सकता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज, टाइमली उन्हें लोन मिल जाता है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रूरल पुअर। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काफ़ी बड़ा उनके डेवलपमेंट का एक बेस बना हुआ है। They help women to become financially self-reliant. Now, what are the benefits for women of SHGS? By the SHGS, now the women, they become financially self-reliant. Regular meeting help them to discuss social issues like health, nutrition, domestic violence, etc. और लगातार अगर वो मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, बैठकें होती हैं उनकी, तो वो जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकती है और उन पर अपना विरोध भी जता सकती है। तो ये SHGS वीमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वो अपना विरोध जता सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. Grameen Bank of Bangladesh is the example of self-help groups founded by the Professor Muhammad Yunus, started in 1970s as a small project. Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at a reasonable rates. तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश विश्व का सबसे अनूठा एक उदाहरण है कि गरीब लोगों को लोन, और वो आसानी से लोन को क्या करते हैं, रिपेमेंट भी करते हैं. दिस वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इन 1970s. ग्रामीण बैंक इन 2012 हैज़ ओवर 8.37 million borrowers in about 81,000 villages spread across Bangladesh. So what is the membership and what is the area? You can see here about the Grameen Bank of Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong the poorest section of the society. और इनमें से अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो बोरोवर है, वो लोन लेती हैं और टाइमली लोन को रिपे भी करती हैं. एंड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस. और यही कारण था कि 2006 में उनको शांति के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ credit by the formal and informal, the working of Reserve Bank of India, and about the self-help groups. Thank you and have a nice day.